Hi guys, this is Akib Ilyas from Man Cricket Team and welcome to my YouTube channel. Today I will be discussing about differences between associate cricket and test playing nations. First of all, I would like to say that thank you ACC and ICC for providing us a lot of tournaments. During the last 2-3 months, this is the best time of cricket I ever played. Like we had lots of matches to play against some of the top teams, some of the top nations, and lot of competitive cricket such as Asia Cup qualifiers which Nepal won. Congratulations to Nepal कि वो लोग जीत गए. आप लोगों को बहुत मुबारक है उसके ऊपर. You guys did really well, good job and good luck to you for the Asia Cup, for the main stage, for the Asia Cup. Then congratulations to Netherlands, being an associate, they qualified for the World Cup, whereas test playing nations such as Ireland, West Indies, Zimbabwe, they were being relegated from the tournament. And congratulations to Oman also for qualifying in the top Super Sixes, in the World Cup qualifiers. Then now we have ACC Emerging Cup, where we are playing against the test sides, such as India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka. All top teams are here. So, lot of quality and competitive cricket in the last 3 months. So, congratulations for all those who are playing all these tournaments and doing well in this tournament. So, it's a good thing, good sign for cricket and for associate cricketers also. Now we'll talk about differences between test playing nations and associate cricket. At no stage you can compare a test playing side with an associate side, because I feel आप लोग कभी कभी you keep a lot of expectations. There can be days when associate cricketers, when they do well, associate teams when they do very well, they can defeat the test playing nations, but it can't be possible every day, because test playing nations are उनमें और हम में उनके work ethics और हमारे work ethics में बहुत difference है. Associate the test playing nations, the test playing sides, they just focus on the cricket. They don't have any other thing to focus on. I'm not talking about the personal life or something. They've been just paid to work on cricket. कि सिर्फ अपने क्रिकेट पे फोकस करने के लिए उन्हें कहा जाता है, not any other thing. Whereas in associate cricket आपको अपने काम पे भी ध्यान करना है, आप अपनी जॉब पे भी you have to focus on your job also, उसे भी बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, and then you have to focus on your cricket. We are not professional cricketers. So there are guys जो सुबह में जॉब भी करते हैं, then they work on cricket also, फिर आफ्टरनून में भी they जॉब करते हैं, then they look for the cricket also. So it is not an easy job, staying abroad और वहाँ पे अपना main thing is, first thing is you have to focus is on your job, and then it goes to the cricket. तो वो easy नहीं रहता. उसके बाद the thing is यार, we as a team, we have lot of quality bowlers, but the thing is the pace differences, somewhere it comes in. आप जब associate cricket में खेलते हैं तो fastest bowler you might face is maybe 135, maximum 135, but when you come to test playing nations, the bowlers are the minimum ball they bowl will be 135 plus. उसके बाद you come to top quality teams तो 140 plus भी करते हैं. पेस इज़ नॉट अ मैटर, बट द थिंग इज़ कि आपको उसकी प्रैक्टिस होगी ही तो ही आप उसको खेल सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट ईजी. जैसे अभी देखें नेपाल के प्लेयर्स हैं, उनको शॉर्ट पिच पे प्रॉब्लम हो रही है. सिर्फ नहीं नेपाल नहीं, मैंने इधर हमारी टीम में भी कुछ प्लेयर्स, ये मतलब इट्स अ डिफरेंस उनकी शॉर्ट पिच में, और यू प्ले अ शॉर्ट पिच एट पेस ऑफ 135, इट्स टोटली डिफरेंट, एंड यू प्ले इट एट द स्पीड ऑफ 140. वो ह्यूज डिफरेंस आ जाता है. तो साइड आर्म्स एंड ऑल, दीज आर गुड थिंग्स टू प्रैक्टिस इन द नेट्स, बट जब तक आप मैचेस में वो खेलोगे नहीं, आई फील कि आपको वो जो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वो वैसा रिफ्लेक्सेस वो आएंगे नहीं. सो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. टेस्ट प्लेइंग नेशंस व्हेन दे प्ले अगेंस्ट द एसोसिएट साइड्स, वो ये टारगेट करती हैं कि विद द स्पीड ऑफ 140 इनको शॉर्ट बॉल ट्राई करो. दे माइट बी विकेटेड, एंड होता है दे गेट लेट, बिकॉज यूजुअली एक तो प्रेशर भी होता है. उसके बाद कि क्विक बॉलर है, थोड़ा सा भी लेट हुए तो आगे से बॉल स्विंग हुआ, चांसेस आते, शॉर्ट पिच थोड़ा तेज़ हो गया तो लेट हो सकते हैं. मैनी थिंग्स गो अराउंड, तो इजी नहीं होता अनटिल अनलेस आप देखें कि कोई भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, दे हैव 6 to 7, 8 to 10, इवन नॉट इवन 6 to 7, मे बी 8 to 10 टॉप बॉलर्स इन द नेट जो 140 कर रहे होंगे. दे इजीली दे विल बी बॉलिंग 140, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम टू फेस 140. वो इजीली फेस कर सकते हैं. इट्स जस्ट द स्विंग जो उन्हें प्रॉब्लम करता है. लेकिन एसोसिएट्स में कभी कभी पेस भी एक इशू होता है. व्हेन दे गेट टू फेस समथिंग अबाउट 140 और समथिंग अराउंड 140, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है. तो यू कांट ब्लेम द बैटर्स दैट दे डू वर्क हार्ड, रियली वर्क हार्ड. ये सिर्फ उनके नेचुरल स्किल्स हैं, उनका नेचुरल टैलेंट है, जो अभी भी वो लोग टेस्ट प्लेइंग नेशंस के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे हैं. दे गेट रन्स, इट इज़ ऑल अबाउट दैट. उसके बाद देन द अदर थिंग इज़ जो बैटिंग है, स्पिनर्स. द अदर थिंग इज़ प्लेइंग स्पिनर्स, दे हैव क्वालिटी स्पिनर्स. लॉट्स ऑफ स्पिनर्स आर देयर इन द नेट्स, जो आप पे डिफरेंट स्पिनर्स होंगे विद डिफरेंट वैराइटीज़ जो आप पे बॉल करेंगे.
and you are used to play them, but in associate ऐसा नहीं है, you get the minimum amount of spinners और उन्हीं को आपने खेलना होता है, every day you play them. तो स्पिनर्स स्टिल एशियंस प्ले रियली वेल, ऐसा नहीं है स्पिनर्स पे कभी ऐसा हुआ नहीं कि बहुत प्रॉब्लम हो, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत आउट क्लास स्पिनर हो तो उस पर प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज बैट्समैन जो हैं वो स्पिनर्स को इजीली फेस कर लेते हैं, व्हाट आई फील इज इन एसोसिएट क्रिकेट. तो फास्ट बॉलर्स पे थोड़ा इशू होता है, बट विद टाइम अगर इस तरह की क्वालिटी क्रिकेट खेलते रहेंगे तो वी नो वे वी हैव टू सेट द स्टैंडर्ड्स, हमें कहाँ इंप्रूव करना है और हमें क्या प्रैक्टिसेस में लाना है जिसकी वजह से हम इंप्रूव कर सकते हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग. और उसके बाद जो है द मेन थिंग इज़ कि टीवी का प्रेशर बहुत होता है, ऑनेस्टली देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ टीवी कि हमारा मैच लाइव आ रहा है, ओवर द ईयर यू डू वेरी वेल, आप पूरा साल अच्छा करते रहते हो, बट यू आर नॉट बीन ब्रॉडकास्टेड लाइव, आपके मैचेस लाइव नहीं आ रहे होते, बट ओवर द ईयर ओनली 1 or 2 मैचेस आर बीन लाइव, और उसमें आपको पता होता है कि अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो पीपल विल जज यू ओवर दोज 2 मैचेस. आई हैव बीन पर्सनली थ्रू दिस कि पूरा साल अच्छा परफॉर्म किया एंड देन 1 and 2 बैड मैचेस ऑन लाइव TV, and then people said कि नहीं you are not talented enough for ये वो. It's not about people, but yeah still these things come in कि नहीं आप तो TV पे मैच देखा था and you couldn't do anything. So number of matches जब आप खेलते रहेंगे, whereas टेस्ट प्लेइंग नेशंस वो मैच खेलते रहते हैं, they know not today, if not tomorrow, maybe day after, किसी ना किसी मैच में will be able to perform and you will be a highlight. तो उन्हें वो इतना प्रेशर नहीं होता है बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री, बट नॉट एज मच जितना एसोसिएट प्लेयर को होता है कि यार सिर्फ 1 मैच आएगा पूरे साल का या 2 मैच आएंगे, उसमें भी परफॉर्म नहीं हुआ तो पीपल विल जज अस बाय द परफॉर्मेंसेस एंड द वे दे हैव बीन हाईलाइटेड. एसोसिएट प्लेयर्स वैसे हाईलाइट नहीं होते, इफ वी स्कोर अ सेंचुरी we have to share it by ourselves, rarely. अभी अच्छा हो रहा है कि ACC is sharing, ICC is sharing, that's a good thing. Otherwise last 3, 4, 5 years you take हमें खुद share करना पड़ता है that we have done this and all, whereas test playing sites if they do anything the whole media has been covered, which is a very good thing. It can be negative in the other way also कि वो नहीं करते तो they have to take a lot from people also, जहाँ कि हमारा ऐसा नहीं है इतना. But the thing is the number of matches, they play a lot of matches, every other day they play a match, so the match confidence is what you need, because practice is something आप वो every day करते रहेंगे, but when you go out to the match, it's difficult. आप नेट्स में सिंगल्स लेने की ट्राई कर रहे हैं, you feel कि आप सिंगल हो रहे हैं नेट में, you play a shot and you say that's a boundary, नेट में आप you play a spinner and you say it's a single, but जब मैचेस में वो 11 फील्डर्स आ दे then आप बोलते हो कि नहीं यार it's not easy, एक बाउंड्री भी नहीं आ रही, सिंगल भी नहीं करने दे रहे. So that is when match awareness, situations, different type of bowlers, so that is what match confidence is. Matches are very important. जो कि test playing sides I feel they play a lot of matches, whereas associates they are not able to play a lot of matches. Though we played a lot of matches in the last 2 months, it is good, but कुछ लोगों के लिए वो tiring भी है. Some of the fast bowlers they get really tired because they are not used to play a lot of matches. T20s होते हैं या within 3-4 months only 3 to 4 ODI matches होते हैं, maybe maximum 6 होते हैं, but now we have played 20 to 25 ODI matches in the last 2 months, which is I feel too much for the fast bowlers. कुछ लोग जो अनफिट हैं, जिनकी इतनी फिटनेस नहीं, उनको भी प्रॉब्लम होता है इसमें बहुत. एंड देन उसके बाद यू कम टू स्पिनर्स. इसी तरह हम लोग जो है वो इतना वर्क हार्ड नहीं करते. दिस इज़ व्हाट वी कैन ब्लेम टू आवर सेल्फ, कि एज अ बॉलिंग वी कैन वर्क अ लॉट ऑन आवर सेल्फ. हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग कर सकते हैं बिकॉज नेट्स में व्हेन वी प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट्स में इतनी पॉजिटिव क्रिकेट नहीं है. मतलब बैट्समैन जो हैं दे टेक टाइम, बैट बॉल भी जो है वो पनिश नहीं करते, मोस्टली ऐसा होता है. बट व्हेन यू कम इन टू द इंटरनेशनल क्रिकेट, यहाँ पे इवन दे विल हिट यू फॉर अ गुड बॉल एंड देन यू आर ब्लैंक कि ये क्या हो रहा है, आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज एवरी अदर बॉल दे आर गोइंग बिहाइंड मी और रन्स आ रहे हैं. in domestic cricket you bowl 10 overs, you maximum get hit for 40 runs, maybe maximum जब आपको बहुत मार पड़े तो it is about 50-55 runs. But over here a normal good day, international cricket like a good day, जहाँ आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छी bowling कर रहे हैं, at the end of the day when you see the score sheet, it's like 10 overs 40 runs minimum easily, जिसमें आपको सिर्फ 2-3 बाउंड्री होंगी. and because they know how to strike, change the strike, every other ball they take a single, एक बाउंड्री आ जाए तो 6-7 runs in and over आ जाते हैं. So with number of matches when you play you get this confidence कि okay this is fine, यहाँ पे इतने runs आएंगे. maybe some on a very turning track आप बहुत अच्छा कर लें, otherwise there are flat tracks, तो इतना difficult होता है as a bowler to bowl them. So you have to be very much on target. तो उसके लिए आपको nets में ज़्यादा से ज़्यादा work hard करना है, which I will do personally when I leave from here, which what I have seen. and
The other thing is, nowadays franchise cricket have improved a lot. बहुत ज़्यादा franchise cricket हो गई है. So number of players who will play franchise cricket, उनका confidence भी build होगा. Staying in the top place, what their preparation is, वो क्या prepare कर रहे हैं, क्या demand है, क्या करना चाहिए. And then the TV thing, that कि TV पे matches आ रहे हैं, those pressure will go away because आप all the time आप TV के ऊपर हो, then it's a normal thing for you. आपके लिए वो बड़ी बात नहीं होंगी. तो I have seen players जो नॉर्मल प्लेयर्स थे, बट देन दे स्टार्टेड प्लेइंग लीग्स एंड ऑल, एंड देन उसके बाद जब वो हमारे अगेंस्ट आए तो दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, एंड उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही चेंज हो गया था. लाइक यूटेक सिकंदर ही वाज अ गुड प्लेयर, बट द मोमेंट ही प्लेड फ्यू लीग्स एंड ही केम बैक, ही वाज एक्स्ट्रॉर्डनरी. वो लग ही नहीं रहा था कि मतलब उस लीग का प्लेयर है. ही वाज लुकिंग नेक्स्ट लेवल, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बातें. तो इट इज़ गुड टू सी व्हेन यू आर अमंग द टॉप प्लेयर्स. तो एक आप हेल्दी सर्कल में रहेंगे तो आप उसी तरह इंप्रूव करेंगे. सो यही कहना चाहूँगा कि दैट एसोसिएट क्रिकेट इज़ वे बिहाइंड दैट टेस्ट प्लेइंग नेशंस, बट स्टिल नाउ इट इज़ कमिंग अप. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. इट इज़ कमिंग अप. नेदरलैंड ने प्रूव करके दिखाया है. इट्स ऑल्सो अबाउट मेंटेलिटी, कि आपकी मेंटली आप कितना स्ट्रांग हो, हाउ विलिंग यू आर टू कम्पीट अगेंस्ट द टॉप साइड्स. मैच डिसीजंस जो आप लेते हैं, रिसेंटली वी प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश, ऑल द प्लेयर्स वर सेट 25-30s में सेट थे, दे प्लेड अ रैश शॉट, गॉट आउट. तो वही अगर वो बिल्ड करते 30s को 80s में, 70s में, 100s में कन्वर्ट करते, तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग. सो इसी तरह व्हेन यू प्ले दीज गेम्स यू गेट टू लर्न कि दिस वाज माय मिस्टेक, नेक्स्ट मैच आई डोंट हैव टू डू दिस अगेंस्ट द टॉप साइड्स, आई हैव टू कन्वर्ट इनटू दिस, आई हैव टू वर्क ऑन माय फिटनेस, आई हैव टू टेक सिंगल्स, आई हैव टू वर्क ऑन माय बॉलिंग. तो देयर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन वर्क ऑन. ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन वी कीप प्लेइंग अ लॉट ऑफ मैचेस, व्हेन वी कीप प्लेइंग अ लॉट ऑफ मैचेस. सो होपफुली एसोसिएट क्रिकेट इज़ गोइंग टू डू अ लॉट बेटर इन द फ्यूचर, अगर ऐसे टूर्नामेंट्स मिलते रहे. पर ऐसा ना हो कि आफ्टर दिस 2 months ऑफ क्वालिटी क्रिकेट वी आर बीन लॉस्ट फॉर 6-7 months एंड कोई क्रिकेट ना हो, तो दैट्स अ मेन प्रॉब्लम. सो होपफुली आई फील ICC एंड ACC को बहुत सारे मैचेस हमें देते रहना चाहिए, एंड वी शुड कम्पीट अगेंस्ट टॉप नेशंस सच एज बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मैनी अदर टीम्स, क्योंकि सब टीम्स विल नहीं करती एसोसिएट्स के साथ खेलना. दैट इज़ ऑल्सो एन इशू. सो ICC शुड हैव अ लुक ऑन दिस. एंड द अदर थिंग इज आई गुड लक टू ऑल द एसोसिएट टीम्स. डू वेल एंड enjoy the cricket. Good luck.